Harshwal, and our guest speaker, C. Samar Harshwal, will speak about the new normals for accounting and auditing. We have C. Samar Harshwal, the Managing Director of Harshwal and Company LLP, USA, as the guest speaker. He is a member of AICPA, the Association of Certified Fraud Examiners, USA, and many more such associations. He provides an excellent opportunity to the Indian CAs in the US accounting, auditing, and consultancy. He is a globetrotter and a trained professional speaker on auditing, global accounting, fraud prevention, and internal controls. In the last 5 years, Mr. Harshwal has provided over 400 hours of training to professionals worldwide on GSB, JAS, OMB uniform guidance. खान साहब, आपके पीछे से आपका बैकग्राउंड का जो वॉइस आ रही है उसको बंद करिए एक बार आप। सर यहाँ से नहीं है सर, बिल्कुल यहाँ तो। Can I continue? Continue. Yeah. Mr. Harshwal has provided over 400 hours of training to professionals worldwide on GSB, JAS, OMB uniform guidance, FASB, SAS, COSO, COBIT, internal audits, fraud prevention examinations, and tribal governance issues. Besides having significant experience in audits, strategic assessments of the accounting function, and internal control structure, Mr. Harshwal also has extensive experience in evaluating complex accounting and finance issues. We are glad to have you here in today's session, sir, on behalf of CIRC. Your insights will surely take us to new path to resolve the issues and find innovative methods to simplify a professional journey. I would now like to introduce our speaker of the day, CA Kirti Khandelwal. Kirti has 9 years of professional experience in finance, accounting, and controllership. She has been part of management in manufacturing industries and handled various project finances. She has also worked as CFO in the early stage of her career. While gaining experience in the accounting profession, CA Kirti Khandelwal also earned technical expertise. And today she will elaborate to us how such tools and technologies can help C professionals in their work. Now, I will now hand over the session to our chairman, CA Atul Mehrotra, sir, to the welcome room. Atul, sir. Thank you, Ashish, the moderator of today's VCM. Very respected Anwar Harshwal ji and the other speaker, Kirti Khandelwal ji, my colleague and the pillar of the CIRC team, Lokesh Maheshwari ji, our secretary, and other office bearers, my seniors in the profession, professional colleagues, boys and girls. Very good afternoon to all of you. I am very much pleased to go through the topics of our regular VCM, which are being organized by CIRC, because the theme, the topics, and the speakers are very closely assessed, or I can say rather, they have been chosen by our team on the basis of their intelligence, their depth of the subject, and accordingly, we are having one of the best faculties for today's topic. So as far as our CIRC is concerned, it is for the general information knowledge of our members that our team is willing to serve our members and students in a better manner and trying to resolve or solve any of the issues related to our members and students within hours, within minutes as well. So you all are requested to kindly contact any of our office bearer whenever there are any issues relating to any matter which is relating to our ICI or our decentralized office of Kanpur. And I am thankful to the speakers of today's VCM for sparing the time for their valuable inputs with our members. Thank you all. Over to the moderator. Thank you, sir. Now we can hand over to Kirti Khandelwal. Yes,
Thank you. I would also like to welcome all my members, all the panel members, and of course our guest speaker, Mr. Harshwal. So without further ado, let's start with our topic. So for today's discussion, we have taken a topic which is very elusive. By elusive, I mean it is quite unclear as in for today, but I'm sure it might have a sound impact as and when, you know, the time passes in the near future, maybe down the line coming 5 years or 2 years. Why I'm saying is this, if you go back, right, like 2.5 years back, if somebody would ask you, would you work from home? Like ever since this COVID has happened, no one, you know, has a clue of working from home or remotely working. So 2.5 साल पहले तो किसी को ये मतलब किसी से पूछेंगे तो they will definitely come back to you and say कि अरे नहीं, this is not possible. But the possibility has become because of the, you know, different work environment which is required because of this COVID situation. So without further ado, but before we you know, dive into the content, let me go through the topic content, which says the new normal for accounting and auditing. By this, what I mean is, see, many softwares, many ERPs, many technologies are already in the environment. You know, they are available to you. You can access them according to the requirement that your organization might have, right? लेकिन वो इतना moderately use हो रहे हैं अभी, not to a greater extent. Maybe some of them are using in a greater extent, but you know, moderately using, or maybe in a development phase. So we are going to cover this thing that down the line, maybe 5 years or 10 years, this is going to be the normal thing for our profession. See, going through these softwares is going to be normal thing in our profession. आज अगर हम देखें, because gone are the days where we have this वो red वाला एक ledger होता था, उसमें जमा खाता हम करते थे, gone are the days, ठीक है? उसके बाद evolve हुआ to the ERPs. अगर अभी आज किसी से पूछेंगे हम what is Tally, तो सब बोलेंगे हाँ हाँ पता है हमको, this is a ERP, because it is at a matured level. जो टेली है उसने एक यू नो एक पेज बना लिया है, एक बैकग्राउंड बना लिया है कि हाँ टेली यूज होता है फॉर अकाउंटिंग के लिए. लेकिन अपार्ट फ्रॉम टेली there are thousands of softwares that are available which can make your life easier. तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं. What all technologies are we having in ground in the networks, or we have the access to them to make our life easier. एक वर्चुअल ऑडिटर वाला जो चीज है ना, वो आने वाली है, यू नो, डाउन द लाइन. तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, कि टॉपिक का एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया. व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट? दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल, ठीक है. दूसरा चीज, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टेक्निकल सेशन, आई वुड से, ठीक है. हम इसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, या इसका एनक्रिप्शन कैसे रहने वाला है, या इसके नोड्स कैसे रहने वाले हैं. दिस इज ऑल IT टीम वर्क. हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि हमारे प्रोफेशन में हम इन चीजों को कैसे अब ला सकते हैं, ठीक है. एंड दिस लाने वाला चीज जो हम अभी यूज करेंगे, दैट विल बिकम अ नॉर्मल थिंग आपके फ्यूचर में, ठीक है. एंड सेकेंडली, फॉर like I'm not intended to promote any software, like I just said about Tally. So just to make you relatable about the topic, about the software, I am going to take, you know, some examples जिसमें इन softwares के नाम होंगे. So you might feel relatable to that, कि आपको लगेगा यार कभी तो ये वाला term मैंने सुना था, use किया था. So now I can have the overview on that, कि हाँ इसका एक फीचर ये है जो मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है. दिस इज क्वाइट यूजफुल. सो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ द नेम्स, यू नो, लेटर इन द सेशन. एंड जो टेक्नोलॉजीज हम बात करने वाले हैं, दीज आर ऑल इन द रिसर्च लेवल. नॉट ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम आर इनटू अ रिसर्च लेवल. या तो वो डेवलपमेंट फेज में है, या वो कहीं ना कहीं यू नो मॉडरेटली यूज हो रही हैं, ठीक है. जैसे मैंने अभी टेली का नाम लिया, लेकिन टेली से भी ऊपर आप कोई भी टूल ले लीजिए, ठीक है.
जैसे SAP था, फिर SAP के बाद और MIP एंड ऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैव इवॉल्व्ड, तो वो मॉडरेटली यूज हो रहे हैं। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यूज हो रही है अभी, बट होगी। So we as chartered accountants or we into our profession should, be ready to be that, software एक expertise हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अब बुक्स उसी तरीके से बनने शुरू हो गए हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे फाइनेंशियल्स हैं वो सब डाउन द लाइन उसी पैटर्न पे या उसी सॉफ्टवेयर पे इजीली आपको मिल जाएंगे। यू कैन हैव द ऑडिट ट्रेल एज वेल, वो रिकॉर्ड कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके खत्म हुआ। Nobody will have the, authority to somewhere उसको कहीं भी, interrupt करने की या उसको, break करने की किसी के पास भी authority नहीं होगी। So इतना कुछ environment बदलने वाला है कि in the real time we are going to see, yeah, this is the whole transaction going on, और अगर इसमें कुछ problem रहता है या कुछ एक fraud रहता है तो we'll get to know within no time, ठीक है। So ये बातें आज आपको थोड़ी अनक्लियर लग रही होंगी, but believe me, this is going to have a really, sound impact down the line. ठीक है, और मैं कोई न्यू मैथ की बात नहीं करने वाली हूँ इसके अंदर। These concepts are already there. अगर कभी कोई सर्च करता हो या कुछ इस बारे में कभी जानने की कोशिश की हो, कभी टर्मिनोलॉजी मिली हो कि चलो उसके बारे में बात करते हैं, तो रिसर्चर्स आर अवेलेबल ऑन द नेट, राइट। नेटवर्क्स पे है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, पीपल आर यूजिंग इट, राइट। तो ये तो हुआ हमारा सेशन के बारे में बात। सो लेट्स बिगिन विद द पीपीटी एंड वन मोर थिंग, we'll have the queries like after this session, बिकॉज एक फ्लो में हम इस बारे में बात करेंगे पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड देन वी कैन हैव योर क्वेरीज इफ यू हैव। विल ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिसर्चेस वी हैव, बेस्ड ऑन द सोर्सेज दैट वी हैव। Okay, so I think my screen is visible to all. So let's begin. I have given the overview on the topic, what is it all about. So these are the some insights of the sessions, right? कि हमें automation क्यों चाहिए रहेगा अभी, हमारे benefits क्या रहेंगे, हमारे challenges क्या रहेंगे, क्योंकि सी कोई भी changes अगर हम लेकर आते हैं ना by the time, तो ऐसा होता ही है कि उसको डिप्लॉय करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस आते ही आते हैं, ठीक है, बट दैट चैलेंजेस विल बी ओवरशैडोड बाय द बेनिफिट्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो ओके, दिस इज द कंटेंट। लेट्स बिगिन विद द कंटेंट्स हम देखते रहेंगे डाउन द लाइन जब भी हम लेटर इन द सेशन जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हाई डू वी नीड टू ऑटोमेट accounting in future? क्योंकि these are the main reasons why do we need automation in our profession. That is, first, ensure data security. See, data security is not a new word, I guess, to all of us, right? And like everything is on network, correct? And और जो सारे डेटास हैं अपने, वो अपने सारे नेटवर्क्स पे रहते हैं, करेक्ट। तो उसको सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वी एज अ प्रोफेशन हैज। सो अगर जब तक हम ऑटोमेशन नहीं लाएंगे या सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे टू सिक्योर दैट डेटा, वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। फिर सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड बेनिफिट और सेकेंड रिक्वायरमेंट इज हेल्प्स इन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। अभी अगर हम बात करें, ठीक है, कंप्लायंसेस की या चेंजेस की, तो डिसाइड फ्रॉम द टैक्सेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टीम्स को अभी एक शिफ्ट की जरूरत है टू द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चेंजेस, बिकॉज वी हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरी। अभी आज हम जैसे मान लीजिए और कोई सेशंस भी रहते हैं अपने, ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं सो एंड सो चेंजेस हैव कम, ठीक है, उसके बेसिस पे ये फॉर्म्स हैं या उसके ये कंप्लायंसेस हैं। तो सॉफ्टवेयर विल डेफिनेटली और ऑटोमेशन विल डेफिनेटली पॉप आउट कि क्या चेंजेस हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे अप्लाई होने वाले हैं, राइट। आई एम श्योर, आई एम लाइक यू गाइज फील इट रिलेटेबल, ठीक है, आई होप सो।
थर्ड थिंग इज बेटर एनवायरनमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इस बारे में शायद हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बिकॉज दिस इज अ शार्प फोकस फॉर द कंपनीज नाउ। ठीक है, स्पेशली पब्लिक कंपनीज, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हो गए हैं जिसकी वजह से उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। दे आर सोशली दे आर टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइमेट। उनके ऐसे कोई बिजनेस ऑपरेशंस तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो खराब हो रहा है, या फिर कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो नहीं हो रहा है। मतलब दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। बट जो ये कंप्लायंसेस है, ये करने के लिए भी हमें ऑटोमेशन चाहिए दैट विल डेफिनेटली पॉप आउट द the implication of that particular reform or particular law. Fourth is supports in meeting accounting standards that we know. Accounting standards ऐसे सब change होते रहते हैं, ठीक है? So throughout the year, if we have something like that on our day-to-day working or operations में हमारे पास ऐसा कुछ है that can help us in understanding the accounting standards, तो थोड़ा एक ना ईज हो जाता है चीजों के लिए। प्रोएक्टिव अकाउंटिंग, राइट, हमारा जो प्रोफेशन है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी नीड टू हैव अब ऐसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, सी वो हमारे एंड ऑफ द मंथ हम रिपोर्ट करते हैं या एंड ऑफ द मंथ हमारे पास रहते ही रहते हैं। तो हम ऐसा कुछ एक रन या ऐसा कुछ एक ERP क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो जो मंथ एंड के एक्सपेंसेस हैं दैट विल ऑटोमेटिकली बी पोस्टेड इनटू योर बुक्स। और फिर हम, दिस इज कॉल्ड अ प्रोएक्टिव अकाउंटिंग एक्चुअली, कि मंथ एंड होने से पहले ही हमको पता है कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से रेकरिंग ऑपरेशंस हैं जिनको हमें मंथ एंड पे डालना होता है। तो ऐसा कोई एक रन बना सकते हैं जो अपने आप रन करे, एंड देन you will have that what do you call the transactions, or you will have the data prior to the month before it's happening, so that हम analysis के लिए अपना टाइम निकाल सके। ठीक है, then we have data analytics and forecasting for sure, budgets, forecast, ये आजकल बहुत हो गया, ठीक है, जो कंपैरिजन हम रखते हैं टू द प्रायर पीरियड, कि प्रायर पीरियड में जो हमने गलतियां की है वो इस बार हम उसको रिपीट ना करें, उसके लिए वो जो डेटा रहता है, दैट सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू software will helps you to keep a record on that, right? And of course digital transformation, it is happening, right? Transformation is हर चीज अपने अपने है ना डिजिटल वर्ल्ड में आ गया है, राइट? तो this transformation is needed, and this list goes on, but these are the some advantages or need that we require for the automation in the accounting world. Now comes how volatile has the profession become, right? To give a sense of how much change the accounting profession is undergoing, look no further than recent changes to the CPA exam, right? उन लोगों ने अभी announce किया है, like for 2021 exam, they have announced that there is a need for a digital and data driven mindsets, और वो लोग एग्जाम में उसको मतलब अप्लाई भी करने वाले हैं इस चीज को। एंड चलिए सीपीए एग्जाम की तो एक बात हो गई, ICI इंस्टीट्यूट खुद का एक उनका एक डिजिटल बोर्ड है, एक अपकमिंग प्रोग्राम आने वाले हैं अभी 22 या 24 जुलाई के बीच में, कोलकाता, नोएडा, they are giving certifications on the courses that are required. So हम कहीं भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, this is happening and this is going to happen. उसके लिए we are preparing. ठीक है, now we'll talk about the key challenges, right? So हमारे key challenges हर जगह जहाँ पे भी changes होते हैं, I told you, एक challenge रहता ही रहता है. So this is based on the IBM survey. I was going through one survey that IBM has conducted कि automation के लिए क्या challenges आ रहे हैं, whether these are big sized firms or mid-sized firms or small businesses भी हैं, तो उन सब का एक combination बना के they have taken this survey
और उनको पता चला है कि these are the challenges that we are having on automation. Correct? So, like if you go by the datas, I do have the datas. Let's have a quick overview on that. I'll not take much of the time on this because we do have other things to discuss. So let's say 43% has a difficulty in selecting the right provider, right? Because automation क्या है कि data driven रहता है. आप जो data pre-filled करेंगे, that will, you know, उसी से एक process generate होता है, ठीक है? और वो उस पे काम करता है. Correct? So they have this, you know, difficulty in selecting the right data, right fields. क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि expertise भी चाहिए रहते हैं अपन को. We don't know क्योंकि we being an accountant only knows कि इस transaction को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है. Where is the beginning and where is the end? Correct? We don't know what is happening behind. जो उसका जो system चलता है IT purpose से वो हमें नहीं पता. तो हम सिर्फ data दे सकते हैं, but data has to be accurate. Only then this software will give you 100% accuracy, which is required now. Correct? So 44% has a difficulty in providing the ROI, difficulty in prioritizing the use cases. 46% has the infrastructure problem, right? कि वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? तो अब वही एक चैलेंज हो जाता है कि हम करना तो चाहते हैं, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज इन नीड ऑफ दैट, बट हाउ डू वी डू इट? इनिशिएटिव्स जो हैं वो यू नो बढ़ जाते हैं विद द हायर प्रायोरिटीज. सो दीज आर द सम ऑफ द challenges that we do have in the automation. Correct. Now let's come to the key benefits of automation. Okay, I guess we need to do it in a slideshow. Right, this will give you a better picture. Correct. Just give me a moment. It's not happening. Okay, let's do that this way only. Okay. So yeah, there are some key benefits of automation. ठीक है, अब challenges हैं, हमने उसको implication कर दिया है, उसके बाद जो हमारे benefits मिलते हैं हमको सॉफ्टवेयर को. आप इस एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है? थोड़ा सा शायद मेरे हिसाब से बोरिंग हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक डेटा स्पेसिफिक है, एक रिसर्च है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है इस चीज में. बट अगर अपन एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल हम लेट्स से बिग फोर्स में कोई लेते हैं या फिर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लेते हैं, लेट्स से इन्फोसिस. ठीक है, वी एज ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर वहां रहते हैं. ठीक है, हमारा और कोई काम नहीं है, हम उधर व्यू देने आए हैं या फिर यू नो एक फ्रॉड रोकने के लिए आए हैं अगर होता है तो, या फिर हम उनके बुक्स देखने के लिए आए हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हमें वहां प्रेजेंट रहना पड़ता है. ठीक है, मतलब आई एम श्योर यू आर रिलेटिंग टू दैट कि बिग फोर्स या बिग कंपनीज या बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ले लीजिए, इंडस्ट्रीज ले लीजिए, wherever we are appointed as an auditor, we need to be present throughout the year. तो जब हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रहता है ना, तो वो जो एक मार्जिन ऑफ एरर्स होता है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट डूइंग आवर जॉब्स यू नो करेक्टली और उसमें एरर्स रहते हैं या यू नो इंटरवेंशंस रहते हैं, बट मैं कह रही हूँ एक वो जो मार्जिन रहता है ना एरर्स का, वो भी खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स. तो हमको वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर्स डिप्लॉय हो जाएंगे, उनके प्री फील्ड्स रहेंगे, दे विल डू देयर जॉब विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी. राइट, तो और उससे क्या होगा कि हमारा जो एरिया होता है ना वो भी काफी इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो कवरेज होता है ना वो भी बहुत इंक्रीज होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू, I'll take 1 minute on explanation this. कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ सैंपल्स लेते हैं ऑडिट करने पे, लेकिन जब हमें पता है कि एक सॉफ्टवेयर है दैट गिव्स 99% ऑफ एक्यूरेसी या 99.9% ऑफ द एक्यूरेसी, तो हम वो पूरा पॉपुलेशन ही उठा सकते हैं. We can give a better view, a true and fair view on the financials of a person or of a firm या फिर कोई कंपनी या इंडस्ट्रीज जहां पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं. करेक्ट, या तो अकाउंटिंग टूल के वे में या ऑडिट टूल के वे में. ठीक है, ऑडिट टूल तो बेसिकली हमारे पास ही रहता है उसके सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए. पर ठीक है, दिस हेल्प्स अस.
तो थोड़ा सा इसको टॉपिक को थोड़ा रिलेटेबल बनाते हैं। जैसे हमने की बेनिफिट्स देख लिए, आपके की क्या चैलेंजेस देख लिए, ऑटोमेशन में क्या क्या आते हैं, और बहुत लोगों के लिए ये रिलेटेबल भी होगा कि हाँ हम कोई सॉफ्टवेयर लाना चाहते हैं, उसमें ये चैलेंजेस आते ही आते हैं, राइट। तो क्योंकि हमें अभी वी आर आंसरेबल टू द लीडर्स कि व्हाई वी वांट दिस सॉफ्टवेयर, और उसके लिए फिर एक बजट निकालना पड़ता है, ठीक है, विच इज क्वाइट हार्ड। तो इफ वी विल गिव देम द बेनिफिट्स कि हाँ इससे हमारा इतना टाइम सेव होगा, ये एरर्स खत्म हो जाएंगे, देन हमारा मतलब हाफ ऑफ द वर्क इज डन एज एन अकाउंटेंट, करेक्ट। So let's begin with this. In this session, we are going to talk about audit tools first and the accounting tools first and the audit tools. Okay, secondly. So accounting tools में मैं 3 technologies के बारे में बात करने वाली हूँ. One is blockchain technology. Second is RPA, that is robotics, process automation. And third one is online softwares. ठीक है, हमारे पास ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है, वी कैन एक्सेस टू देम, कि वर्ल्ड वाइड या रिमोटली हम कहीं भी अपने जो ट्रांजैक्शंस है ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो फर्स्ट वील कम टू द ब्लॉकचेन। सो व्हाई आई हैव टेकन दिस वर्ड रिडिकुलसली एम्बिगुअस इज, जब भी ब्लॉकचेन की बात आती है, जो कॉन्टेक्स्ट हम पकड़ते हैं, दैट इज बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। ब्लॉकचेन की जहां पे भी बात आती है, ये हम ऐसा इसका मीनिंग निकाल लेते हैं कि यार ब्लॉकचेन मतलब might be they are talking about the cryptocurrency, but this is not restricted to that. Blockchain technology has a vast application apart from Bitcoin, and मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि जब भी हमने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है, probably in the context of Bitcoin, ठीक है, कोई डिनायल नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के एक्सप्लोजन के बाद ही ब्लॉकचेन आई है, करेक्ट। लेकिन जो क्या बोलते हैं, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, ब्लॉकचेन इसके अलावा भी बहुत है। सो इफ यू रीड दिस, blockchain has become a marketing buzzword, making it impossible to talk about the technology. A more productive approach, and the approach we have taken, is to focus on the capabilities. ठीक है, not just the Bitcoin, but blockchain हमारी finance में क्या help कर सकता है, we are going to talk about that. Okay, so we have a quote here. So in the future, virtually every function in the world of financial services will be displaced, disintegrated, disintermediated, and decentralized. Likewise, internet has given us a powerful way to share and access information. Blockchain now has given a powerful way to share and access value, right? ठीक है, अब ये मैं आपको later in the session समझाऊंगी what does this this phrase means, but let's begin with the basics that we have in the blockchain, correct? Blockchain is a distributed ledger technology that enables digital assets to be transacted and traded in the near real time, and the record it keeps is permanent and irreversible. And blockchain has 2 main applications, correct? एक तो हमने सुना हुआ है cryptocurrency, जो बिटकॉइन के बारे में, एक जो दूसरा एप्लीकेशन है, that is for managing transactions related to trade and commerce, which includes everything. यानी आपका जो फाइनेंस जो एरिया है उसको पूरा कवर करता है ब्लॉकचेन. I'll let you know how, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, but this is just a basic that I want to share with you. And blockchain also performs record keeping using automated low cost mechanism, and they enable asset transfer through secure and real time methods. Please note, real time. जो भी blockchain accounting में transactions record होते हैं वो हमेशा real time basis पे होते हैं, ठीक है. I'll tell you कैसे होता है. एक relatable example लेते हैं, ठीक है. हमने एक कैब बुक की, हम एक राइडर हैं, हमने एक कैब बुक की, ठीक है. वो जो राइड खत्म हो गई उसके बाद हमको पेमेंट करना है उसको. Now everybody has their phone. मतलब मुझे लगता है आज 70% or 80% people don't carry cash with them. They just carry a mobile phone and just a click away and the payment is done to whomsoever you want to. But क्या हमने कभी ये चीज सोचा है कि how this mechanism works? कि हमने एक क्लिक किया मोबाइल पे
और पैसा हमारे खाते में से कट के वो सामने वाले के खाते में शो हो गया। जो मैकेनिज्म पीछे चलता है ना, दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसा एक आप सीधे से नहीं बोल सकते हो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉलो करता हो, बट सिमिलर टू दैट। अभी जो रिसर्चर्स आई हैं उनके हिसाब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, बट ठीक है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे कैब ड्राइवर्स, ये जो कैब कंपनीज होती हैं, ओला, उबर, ये सारी चीजें हैं, ये सब अपना ना अलग अलग एक मैकेनिज्म यूज करती है, लेकिन जो बेसिक्स है ना इज ओनली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इस पे अपन एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस करते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ ब्लॉकचेन इज इम्पैक्टिंग द फाइनेंस। जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो मैकेनिज्म है। बिकॉज ये नोड्स और हैश, प्राइवेट की, पब्लिक की, ये सब आपने आर्टिकल्स में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, सारे रिसर्चर्स में यही भरा पड़ा है अगर अपन बात करें। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, लेट मी गिव अ ओवरव्यू ऑन दैट और थ्रो सम लाइट ऑन दैट। आपने कैब बुक की, आपका राइड खत्म हो गया, ड्राइवर ने बोला कि भाई आपको पैसे पे करने हैं, या आपके पास मैसेज आ गया दैट यू हैव टू पे दिस मच फॉर दिस राइड। आपने क्लिक किया, दैट मनी फ्रॉम योर बैंक गेट्स अ नोटिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट कि ये जो पैसा है इतना, ये कट के इस वाले बैंक अकाउंट में जाना है। ठीक है, लेकिन अब इसके बीच में भी बहुत सारे यूजर्स हमारे पास रहते हैं। तो आपका पैसा कट गया, ठीक है, वो एक गेटवे के पास गया। गेटवे के लिए लेट्स से एग्जांपल रेजर पे का ले लीजिए। वो एक गेटवे के पास गया, उसके बाद वो गेटवे ने उस पैसे को रखा अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, भाई उसको 24 घंटे में भेजना है या फिर एक वीक में उसको सेटल करने अकाउंट्स, दैट अप्स टू देम। बट वो पहले एक बार रेजर पे के पास जाएगा, द गेटवे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो उबर वाले को पे करेगा। ठीक है, जो आपका कैब सर्विस प्रोवाइडर है उसको पे करेगा, एंड देन कैब सर्विस प्रोवाइडर विल पे टू दी ड्राइवर। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाई आई एम सेइंग रियल टाइम, यहाँ फोकस देने की बात है कि रियल टाइम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस एक ही मिनट के अंदर या एक ही लेट्स से 30 seconds और a minute or two, so many users are interconnected to a transaction, और उसको चेंज करना it's next to impossible। अगर आपने उसको 200 रुपए देने हैं तो उसके पास 200 रुपए ही पहुंचेंगे। कोई भी एक अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता उस चेन को। दिस चेन इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत इसको क्लियर किया होगा, बिकॉज ये एक डेली बेसिस पे करने वाली एक्टिविटी है। तो दिस इज व्हाट द ब्लॉकचेन इज, नॉट जस्ट बिटकॉइन। बिटकॉइन तो एक उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि हाँ, बिटकॉइन वाले ने ब्लॉकचेन यूज करके एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, एक डिजिटल असेट बिल्ड किया है, या एक क्रिप्टो करेंसी बिल्ड की है। बट दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉकचेन। ओके, सो मुझे नहीं लगता हमें टेक्निकल टर्म में जाना चाहिए। दो आई हैव प्रिपेयर्ड इट, मे बी हम कभी और इस बारे में बात करेंगे, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सो वास्ट, आई टेल यू। अगर हम बात करने लगेंगे ना तो पूरा दिन इसमें बात करने को जाएगा। so many examples, so many software, so many tools are there, तो हम अगर एक एक को भी पकड़ेंगे ना तो it's going to be quite difficult। so हमने एक ब्लॉकचेन मैकेनिज्म समझा, ठीक है, कैसे ये काम करता है। and why I'm saying real time and it's safe is, जैसे यहाँ आप देखेंगे थ्रू पिक्चराइजेशन हम समझते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे वर्कर्स हैं, वो एक बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस बिल्डिंग में ब्लॉक्स हैं। These blocks are nothing but chunks of data, जो अपने रिसर्च में कहीं पढ़ा होगा ब्लॉकचेन के बारे में, कि वो उसको एक डिवाइड कर देता है ब्लॉक्स में। जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसको डिवाइड कर देता है आपके ब्लॉक्स में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, उसको एक एनक्रिप्टेड ब्लॉक में उसको वो डाल देता है। लेट्स से, जैसे अभी हम इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं आधार का। इट्स अ पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट वर्क्स ऑन दैट। जो भी आपका यूजर का डेटा होता है, नाम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सब को कन्वर्ट करके स्मॉल चंक्स में एक ब्लॉकचेन में बेचता है। उस ब्लॉकचेन को बोलते हैं इथरम ब्लॉकचेन, राइट। और वो जाके सेव होता है एक पोर्टल पे, दैट इज कॉल्ड IPFS करके कुछ एक पोर्टल होता है, वहां जाके सेव हो जाता है, ठीक है। अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो एक ब्लॉक बन गया है।
उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और उसको at one point of time thousands of network can access. अगर किसी को उसका UDIN नंबर पता है तो वो डालेगा और उस चाहे किसी भी नेटवर्क पे डालो उसका इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो बात करते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रहता है ये और बहुत सारे नेटवर्क्स पे अवेलेबल रहता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक आधार का UDIN नंबर ही तो है, वो आप जहां पे भी डालेंगे वो आपको उस यूजर की इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा, राइट। तो सोचिए कितने सारे नेटवर्क्स पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये बात हुई कि भाई बहुत सारे नेटवर्क्स पे कैसे अवेलेबल रहता है डेटा। एग्जाम्पल इज आधार। रियल टाइम में कैसे रहता है, एग्जाम्पल इज मे बी आप फोन पे ले लीजिए या कैब सर्विसेज ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे, तो अगर किसी को कोई भी अनएथिकल यूजर है जो हैक करना चाहता है इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा कि सब लोग तो 91 ब्लॉक पे काम कर रहे हैं और मान लीजिए उसको एक ऑल्टरनेशन करना है 74 ब्लॉक पे, ठीक है, जाके, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि पहले 74 ब्लॉक्स पे जो इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए हम मानते हैं कि भाई सबकी सारी टेक्नोलॉजीज एक डिसएडवांटेज के साथ आती है, इसमें भी कुछ एक फॉल्ट मान लीजिए है 0.00001% है। तो अगर एक एथिकल यूजर इस नेटवर्क में चला भी जाता है और उसको किसी ब्लॉक में चेंज करना है तो उसको उन सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो 91 ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, उसको 74। अब इसमें एक व्हाट यू कॉल एक पॉइंट है ब्लॉकचेन में कि आप एज सुन एज द ट्रांजैक्शन स्टार्टेड ना, उसके बाद ही ये सारा फॉर्मेशन होता है। जब तक वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं होगा ना तब तक कोई ब्लॉक नहीं बनेगा, राइट। तो हैकर के पास जैसे 74 ब्लॉक बन गया तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन जब तक पहुंचेगी सारे 91 ब्लॉक तक पहुंच चुके होंगे। तो अगर उसको 74 ब्लॉक में अगर चेंजेस करना है तो वहां चेंज करने के बाद पूरा क्योंकि एक चेंज से वो सारी जगह इफेक्ट होता जाएगा और उसको 91 ब्लॉक में बाकी सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा, राइट। अगर आधार में जैसे आपको किसी का नाम चेंज करना है, कोई आपको बोलता है कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी कर देता हूँ, नॉट पॉसिबल। वो जब तक उसमें करने लगेगा ना चेंजेस, तब तक बहुत सारे नेटवर्क्स पे ये मे बी आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क्स, लेकिन एक नोटिफिकेशन चला जाता होगा या फिर मतलब उसको वो चेंज नहीं कर सकता, दैट्स फॉर श्योर। अगर वो चेंज करना भी चाहे तो उसको एक्सेस नहीं है इन चीजों का। सो हियर कम्स कि जो डेटा सिक्योरिटी वाली चीज है, जो एक्यूरेसी है, जो एक डाउन द लाइन ये बहुत ही एक पॉइंट होने वाला है कि हम हमारे ट्रांजैक्शंस को सिक्योर कैसे करें। तो यहाँ ब्लॉकचेन बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। देन वी हैव सम पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, ठीक है। पब्लिक ही नहीं होती है ब्लॉकचेन्स, प्राइवेट भी हो सकती हैं। अगर हम इस बारे में बात करें, जैसे आई डू हैव दिस विथ मी इन दिस स्लाइड दैट व्हाट इज प्राइवेट ब्लॉकचेन, अगर किसी को समझना है तो we'll just quickly go through the slide. What does it says? Private blockchains are becoming popular. They are non-public but not wholly decentralized. जैसे अभी हमने बात की, right? Create system where access permissions are controlled, rights to modify or read blockchain restricted to few users. अब क्या होता है कि पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे आधार है, वो आप UDIN नंबर जनरेट हो गया पब्लिकली, आपके पास सबके पास है, आप कहीं भी लेके गए आपने एक्सेस कर लिया। लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन ऐसे काम करता है जैसे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें आपको एक यूजर आईडी दिया, वो उस कंपनी में जो एनरोल्ड है बस वो ही उसका एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ हम ब्लॉकचेन को फाइनेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेंटेन्स पार्शियल गारंटीज ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Private blockchains are primary focus of financial institutions, as I said, right? Consortium blockchain consensus process controlled by pre-selected set of nodes. This is a bit technical, right? कि वो nodes पे काम करते हैं, then एक private key generate होती है, and so on, blah blah blah. तो उसको पढ़ने के लिए तो हमें फिर टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, IIT करना पड़ेगा, but that is not required, ठीक है। So पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन में एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है।
So public is permissionless blockchain, ठीक है. Private is permission blockchain, as I told you. Only जिनके पास access है, जिनके पास private keys हैं, केवल वो ही इसको access कर सकते हैं. Nobody else can do that. Anonymous access, आधार कहीं भी जाके आप कर लो, कोई मना नहीं है आपको उसकी इंफॉर्मेशन के लिए. हाँ, लेकिन उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते. आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो लेकिन उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हो. लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन्स में ऐसा होता है कि आप उसको इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट प्राइवेट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसको बिल्ड किया है. करेक्ट. इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता, इसमें कोई लीगल कोर्स नहीं चलता. स्लो ट्रांजैक्शंस, व्हाई? बिकॉज सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम आर एक्सेसिंग टू द डेटा, राइट. तो थोड़ा स्लो होना है उसका, वाजिब है. और ये थोड़ा फास्टली काम करता है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड एक्सेस रहते हैं, बहुत ही लिमिटेड यूजर्स रहते हैं. नाउ ठीक है, जब भी मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करती हूँ कहीं पे भी, लाइक टू द मैनेजमेंट और टू द ग्रुप ऑफ पीपल, उनके मुंह से यही निकलता है कि यार पता नहीं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती होगी. एंड दे हैड सर्टेन क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है. हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में. और मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मस्ट हैव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड आफ्टर हियरिंग टू द टॉपिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब तक उनको उसको बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में ही पता था. ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फाइनेंस, ये हम आज बात कर रहे हैं, या फिर मैंने कहीं और बात की है. तो दीज आर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव कम अप टू मी, and I've tried to solve or I've tried to answer them the maximum I can, right? तो हम पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं. What are the auditors and regulators going to say? भाई हम कुछ प्रपोजल लेके जा रहे हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि नहीं यार ऑडिटर्स क्या बोलने वाले हैं, या फिर ये पता नहीं परमिशन इसका है भी कि नहीं है, हम सही तो कर रहे हैं ना. तो देखिए ये एक रिसर्च लेवल पे है. ठीक है, एवरीबडी इज skeptical about it. Okay. Blockchain is new and companies are still working through operational and compliance issues. But because blockchains rely on self-executing smart contracts and the transactions are irreversible, many auditors and regulators see the technology as a way to save time and improve compliances. As I told you, irreversible है और permanent है. Correct? जो भी इसके अंदर हम फीड करते हैं डेटा या ट्रांजैक्शन मूव होते हैं वो इरिवर्सिबल है. तो मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिलाई ऑन दैट कि हाँ भाई आपकी टेक्नोलॉजी या जो आपने सॉफ्टवेयर्स इनबिल्ट कर रखे हैं दे आर रिलायबल. करेक्ट. व्हाई इज इट कॉल्ड एज ब्लॉकचेन? और कोई नाम क्यों नहीं है इसका? ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी ही ऐसे काम करती है. Correct. This technology uses data elements encrypted in blocks of computer code. The blocks are chained together across a shared ledger through cryptology. If someone tries to hack the ledger, it is immediately known by the involved parties. As I told you, कि आधार में भी कभी कुछ change करने की कोशिश करेंगे तो maybe एक notification वगैरह जाता होगा. I've never tried it, so I'm not sure about it. But I can definitely say this कि कुछ ना कुछ notification या कुछ ऐसा एक hint जाता होगा that somebody is trying to hack your network or going to have an access on that. तो ब्लॉकचेन तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे एक चेन रहती है उसमें कितने सारे वो अपन देखते हैं कितने सारे वो बने हुए रहते हैं. सो दिस इज वर्किंग ऑन दैट. एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो खत्म हुआ, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर वो खत्म हुआ, फिर तीसरा शुरू होता है. एक एंड आता है, उसके बाद वो आगे काम करता है. ट्रांजैक्शन जब तक पहले वाला कंप्लीट नहीं होगा ना, दूसरा वाला इनिशिएट ही नहीं होगा. जैसे अपने अभी कैब ड्राइवर के बारे में बात किया, जब तक आप उसको क्लिक नहीं करोगे, बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि हाँ भाई फला फला अकाउंट में हमको पे करना है, तो तब तक वो इनिशिएट ही नहीं होगा ना. ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, वो कंप्लीट हुआ, बैंक ने रीड किया, उसके बाद वो पैसा ट्रांसफर हुआ टू द गेटवे. तो एक चेन कंप्लीट हो गई. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लॉकचेन. अगर हम रियल या लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो दिस इज ब्लॉकचेन. हाउ डज ब्लॉकचेन फिट विद द ERP? देखिए स्टैंड अलोन भी काम कर सकता है टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर हम इसे किसी ERP के साथ टाई अप करते हैं ना तो बहुत स्मार्ट वे में ये काम कर सकता है. जैसे मैंने अभी बात की उसके बारे में कि आपके कोई भी रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं या आपके कुछ भी ऐसे
एक्सपेंसेस जो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, हमको पता है कि यार ये हर महीने होने वाले हैं, तो यू कैन tie your ERP or command your ERP जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि भाई ये वाला जो चीज है ऑटोमेटिक पोस्ट कर दो. there are softwares available. Then this FAQs continues. Why is this more secure than the tools I already have? ठीक है, मैजिक नहीं है, मैं ये चीज बोल सकती हूँ, इट्स नॉट मैजिक. अगर आपके पास इंटरनल कंट्रोल्स इतने हाई हैं, ठीक है, कि कुछ भी एक मतलब तिनका भी गलत नहीं हो सकता, तो ठीक है, ब्लॉकचेन रिक्वायर्ड नहीं है. दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और उसमें ब्लॉकचेन कहाँ फिट हो सकती है. करेक्ट. ये को फैमिली वाला एग्जांपल जैसा हो गया कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और उसमें ट्रस्ट कितना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कंट्रोल कितना है, उस बेसिस पे आप बात कर सकते हो उस फैमिली के बारे में. सेम इसके अंदर भी ऐसा ही होता है. ये एक अकेला टूल नहीं है, और भी टूल हो सकते हैं, आर अवेलेबल, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं. Some people say blockchains are largely free of risk. Is it true? Yes. I can bet on this. कि blockchains are the most secure network, the most secure technology that we have right now. Evolve हो सकती है, और ठीक है, जैसे जैसे आपकी यूसेज बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी नीड आती जाती है कि भाई हमको ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है. बट राइट नाउ blockchain technology is one of the trustworthy technology that we have. How are blockchains governed and controlled? ठीक है, ये भी एक एनाटॉमी है इसकी, ब्लॉकचेन की. पूरा एक बिजनेस ब्लॉकचेन की एनाटॉमी रहती है. गवर्नेंस लेवल रहता है, एक लेयर रहता है, फिर उसको एप्लीकेशन में लेके आते हैं, फिर डाउन द लाइन आपका उसकी क्लियरेंस होती है कि भाई ऐसे हम काम करवा सकते हैं या नहीं. बट दैट ऑल डिपेंड्स कि हम उसको कैसे डिजाइन कर रहे हैं. ये जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, ये यूजर बेस्ड होती है. आई वुड से कि हमको जैसी जरूरत है, हमारा जितना क्वांटम है, उस बेसिस पे हम उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर सकते हैं. तो फॉर श्योर इसके गवर्नेंस रहते हैं, इसका एक मैकेनिज्म रहता है, ठीक है. वो एक बहुत ही लंबा एक प्रोसेस है. उसकी हम कभी और कोई VCM या वेबिनार जरूर लेंगे इसके बारे में. बट अभी के लिए इतना ही इस बारे में है कि हाँ, these are controlled by the और क्या कह सकते हैं आप, मतलब कुछ भी चीज लेकर आएंगे ना, तो उसके लिए एक परमिशन तो चाहिए रहता है. कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सॉफ्टवेयर, कि हम उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं या नहीं, हमारे लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है. तो yes, these are there. Why are we talking only about the business blockchains? See, business blockchains are set up by a single company or a group of companies where participants are specified and known. They are designed to improve transaction processing. जो public blockchains होती है that supports cryptocurrencies like Bitcoin are entirely different thing. जो हम अभी इस बारे में बात करें ना, business blockchain, वो entirely ये दो different चीजें हैं. एक तो public blockchain जो हम बात करें, एक business blockchain या private blockchain हम बात कर रहे हैं. तो yeah, furthermore, finance can generate significant value from business blockchains without having anything to do with the digital currencies. Like I said, these are two different things: public blockchains and private blockchains. Public blockchains as in जो cryptocurrency की हम बात कर रहे हैं, and sorry, आधार की बात कर रहे हैं, and privates are cryptocurrency, you can say, and finances are different. Okay, so this is about the blockchain technology. मैंने बहुत ही इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, बट आई एम श्योर जो मैंने एग्जांपल कैब ड्राइवर का दिया है और ये जो कैब सर्विसेज का दिया है, ये आपको रिलेटेबल लगेगा, आपको याद रहेगा कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करती है. नेक्स्ट हमारी, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इज रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन. अब ये क्या है? ब्लॉकचेन के बारे में बात कर लिया, अब ये क्या नई चीज है? इसको अगर शॉर्ट एंड स्वीट में मैं समझाना चाहूँ विदाउट गोइंग टू द बेसिक्स, आपको याद है हम लोग जब CA का एग्जाम्स देते थे तो एक OMR शीट हमारे पास रहती थी.
उसके ऊपर हमेशा इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते थे कि आपको ब्लैक पेन से ही करना है या ब्लू पेन से ही उसको करना है, वो जो राउंड है उसको पूरा फिल करना है, आधा नहीं चलेगा, उस राउंड पे क्रॉस नहीं चलेगा, एक ही लाइन में आप 2 ब्लॉक्स पे या 2 सर्कल्स पे आप वो नहीं कर सकते, इंक नहीं कर सकते, ठीक है। दोज आर द इंस्ट्रक्शंस जो कि प्री फिल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं टू द एआई या टू द व्हाट यू कॉल ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर है, कि भाई अगर कॉपी आती है या कोई ओएमआर शीट आती है तो आपको ये रीड करना है। तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ ना, या कुछ भी इधर उधर हुआ, मान लीजिए ब्लैक पेन की जगह आपने ब्लू पेन यूज कर लिया, तो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके इंटेलिजेंस में है ही नहीं। सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एआई और आरपीए कैसे डिफरेंट है, राइट? आरपीए कैन वर्क विदाउट एआई, बट एआई कैन नॉट वर्क विदाउट आरपीए। जैसे हमारा दिमाग है, एक ह्यूमन बॉडी के बिना काम थोड़ी कर सकता है। सो एआई इज व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। बट आरपीए एक ह्यूमन बीइंग बिना दिमाग के काम कर सकता है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। उसको रूटीन वर्क करना है या जो भी है, तो हम ऐसे लेके चलते हैं। जैसे एक ओएमआर शीट का तो अपना एक एग्जांपल हो गया, जिससे मैंने आपको क्लियर किया कि आरपीए है क्या, राइट? कि हमें थोड़ा रिलेटेबल लगे दैट ओएमआर शीट को जो रीड करता है, जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज नथिंग बट रन थ्रू आरपीए। और उस आरपीए को हम और भी बेटर बना सकते हैं विद द एआई। लेट्स से हम किसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, तो हमने एक रोबोट रखा हुआ है या फिर हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जो कि ट्रैक करता है कि भाई यहाँ से मेरा प्रोडक्ट गया और वहां गया, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखता है। तो एज सून एज यू इम्प्लीमेंट एआई इनटू योर ऑटोमेशन, वो खुद ब खुद उसके ना रीजंस या उसके जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी होती है वो ढूंढने लग जाता है। जैसे हम एक किचन का एग्जांपल लेते हैं, हम किचन में गए और हमने कुछ बनाया, ठीक है। तो अगर हम लोग जाते हैं तो ठीक है, जितना हमें सिखाया गया होता है, बेटा इतना नमक डालना है, इतना ये करना है, उस हिसाब से हम बना लेते हैं। लेकिन जब एज सुन एज वी अप्लाई आवर माइंड, तो हमारी एक रेसिपीज निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही एक ये प्रोसेस काम करता है। तो दिस इज वेरी यूजफुल टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आई वुड से, क्योंकि जो आपके क्लरिकल वर्क्स होते हैं ना, जैसे इनवॉइसेस हो गए आपके, थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइसेस आपके लार्ज साइज बिजनेस में रहते हैं। अब उनको बैठे बैठे फीड करना, ये बहुत ही क्लरिकल और मैंडेन जॉब हो जाता है, ठीक है, कि कितने इनवॉइसेस डालेंगे यार। तो रोबोटिक्स के ये जो प्रोसेस ऑटोमेशन है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो इनवॉइस है उसके जो भी फील्ड्स हैं वो सेट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में, और वो सॉफ्टवेयर अपने आप उस फील्ड को रीड करके will post the entry, GIR ये जो है, ये तो छोड़ दीजिए, ये एंट्री पोस्ट कर देगा सीधे कि ये इतना माल आ गया, ये इतना स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो गया। उस इनवॉइस को रीड करके वो अकाउंट्स पेएबल भी बना देगा उसको, ठीक है। आपके स्टॉक में भी दिख जाएगा, आपके परचेजेस में भी दिख जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट उससे हिट हुआ है वो भी दिख जाएगा। बट दैट डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरिकल डेटा दैट वी फीड। ये टेक्नोलॉजी उसी पे काम करती है। इट्स अ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी, आई वुड से, अगर एक वर्ड में मुझे बोलना होगा ना, तो इट्स अ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। जो भी आपने फील्ड सेट की उसको रन कीजिए और वो उस बेसिस पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ एक लैंग्वेज में मैंने देने की कोशिश की है कि व्हाट इज आरपीए। RPA automation allows organization to automate tasks just like a human being was doing them across the application and system. जो भी आपका एक टास्क है being a human being, ठीक है, वो एक रेप्लिका तैयार हो जाता है, तो वो अपने आप उस पे काम करने लग जाता है। The purpose of RPA is to transfer the process execution from humans to bots. Robotic process automation interacts with the existing IT architect and with no complex system integration required. I guess ठीक है, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, these are just terms, but whole and soul ये RPA कैसे काम करता है और ये क्या होता है, that I've already given you a picture, उसको आप रिलेट कर सकते हो उस चीज से। RPA automation can automate workflow, infrastructure, back office processes which are labor intensive. Of course, thousands of invoices आएंगे और उसको फीड करने बैठेगा तो कितना ही बोरिंग सा जॉब है करने के लिए। तो RPA will help you with that.
These softwares both can interact with an in-house applications website. अच्छा, कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है वो स्टैंड अलोन भी काम कर सकती है और किसी के साथ भी काम कर सकती है. As I said in the previous topic also, blockchain technology स्टैंड अलोन भी काम करती है, ठीक है. और पर आप किसी टेक्नोलॉजी के साथ या किसी सॉफ्टवेयर के साथ उसे टाई अप करते हैं तो वो और बेटर रिजल्ट्स देते हैं. सेम आरपीए के साथ है, वो स्टैंड अलोन भी काम कर सकता है विदाउट एआई, लेकिन अगर आप एआई उसमें इनबिल्ड कर देते हैं, ठीक है, थ्रू दी एक्सपर्टीज या जैसे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, तो जो आपका काम है ना वो बहुत आसान हो जाता है. सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहे हैं. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोसेस इज टू रिप्लेस रेपिटेटिव एंड बोरिंग क्लरिकल टास्क performed by humans with a virtual workforce. RPA automation does not require the development of code, nor does it require direct access to the code of database of the application. ये हमने इनवॉइस की एग्जाम्पल की बात की. अभी जो मैंने आपको समझाया वो थोड़ा बहुत इधर पिक्चराइज करने की कोशिश की है कि as soon as this invoice comes to us, एक what do you call आरपीए में हमारा फील्ड सेट है, तो उसमें एक कमांड चला जाता है कि भाई ये एक इनवॉइस आ गया, अब आपको उसको रीड करना है, अब आपको उसको डिफरेंट नेटवर्क्स में पहुंचाना है. डिफरेंट नेटवर्क्स एज इन आपको स्टॉक की तरफ भी दिखाना है, आपको अकाउंट्स पेबल की तरफ भी दिखाना है, अगर कोई कुछ और बीच में भी है या उसको पेमेंट करना है तो उस तरफ भी ले जा सकता है उसको कि पोस्ट कर दी एंट्री एंड देन जो आपका पेमेंट हो रहा है दैट आल्सो हैपनिंग. बट वो एक इंटरलिंक रहता है आपका बैंक विद द सॉफ्टवेयर. उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि हाउ ये जो बैंक का जॉब रहता है ना वो भी हम मिनटों में, मतलब जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वी कैन डू दैट जॉब. ठीक है, सो ये सारा हमने एक स्लाइड में डालने की कोशिश की है कि कैसे ये काम करता है. इफ एनीबडी वांट्स आई कैन डेफिनेटली शेयर दिस इंफॉर्मेशन since it is based on research. तो I don't think so कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो ये अवेलेबल है हमारे पास. नाउ कम्स कि आरपीए के टूल्स क्या रहते हैं. ठीक है, अब आरपीए हम काम कैसे करता है हमें पता है, लेकिन उसके बेसिक 4 पैरामीटर्स हमेशा रहते हैं. एक तो डेटा जो हमने बात की, उसके प्री फिल्ड अपन को सेट करने पड़ेंगे. जैसे ओएमआर शीट में होता है ना कि अगर आपको ब्लू इंक दिखेगी तो ही आप उसको मार्क्स देंगे. अगर आपको पूरा एक सर्कल एक लाइन में 4 सर्कल्स आउट ऑफ 4 सर्कल्स यू सी ओनली 1 सर्कल फिल्ड विद ब्लैक इंक और ब्लू इंक, देन ओनली यू विल गिव द मार्क्स. ठीक है, या देन ओनली यू विल कंसिडर इट एज आंसरेबल. मार्क्स तो चलो एक और फील्ड हो गई, लेकिन पहले उसको ये भी देखना पड़ेगा कि इन सब में से आंसरेबल कौन सी चीज है, कि किसको माने हम ये ठीक उसने आंसर किया है. टाइप ऑफ टास्क, तो 4 पैरामीटर्स इसके हो गए. डेटा जो से प्रीफिल्ड उसकी रहती है. टाइप ऑफ टास्क दैट आर मेनली परफॉर्म, ईज ऑफ कॉन्फरिंग रूल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस. इंटरऑपरेबिलिटी, टूल्स शुड वर्क अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशंस. ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है इस टर्म को, कि ऐसा नहीं हो कि यार अमंग द ऑर्गेनाइजेशन ही वो एक सिस्टम पे काम कर रहा है और एक सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है. क्योंकि जहाँ पे वॉल्यूम रहती है ना, क्वांटम रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही सिस्टम पे आपने रन किया और काम हो गया. वी नीड डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट एप्लीकेशन टू रन इट. तो वो एक चीज होनी चाहिए कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आरपी है, दैट शुड बी एबल टू रन अक्रॉस द सिस्टम्स, अक्रॉस द एप्लीकेशंस. हाँ, एआई की हमने बात की. बिल्ड इन एआई सपोर्ट जो रहता है उसका, राइट. तो ये 4 पैरामीटर्स हमने बात की. wherein we can use these parameters and design our own RPA. ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि कस्टमाइज रहता है या बहुत ही यूजर स्पेसिफिक रहता है. अगर आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक लेवल तक, व्हाट यू कॉल, एक लेवल तक सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, तो वो दैट कम्स विद एन इनबिल्ट फीचर. जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं उसमें आप देखेंगे ना, अरे यार ये वाली चीज आ रही है. जैसे हम टेली की बात करते हैं, उसमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, P&L, बिकॉज ये तो रिक्वायर्ड है, तो ये तो आपको इनबिल्ट फीचर में मिल ही जाएगी.
right? But apart from that, these 4 parameters, drive your RPA, your automation. Now we have some popular RPA tools available. Why I'm taking the names is I told you कि थोड़ा रिलेटेबल लगता है कि हाँ यार ये वाला तो मैं यूज कर रहा हूँ या ये वाला टूल तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ. So does this have a future? Yes, of course. अभी शायद moderately यूज हो रहा होगा, लेकिन to a greater extent we can use all these softwares across the globe, मान लीजिए, या अपने बिजनेसेस में आप आराम से लेकर आ सकते हैं. So Blue Prism is one, Automation Anywhere is one, UiPath is one. These are nothing but RPAs. अगर आपने कहीं भी इन टूल्स के नाम सुने होंगे तो दिस वर्क ऑन दी प्रोसेस ऑफ RPA. अब ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बेनिफिट्स तो रहते ही हैं. सो दीज आर सम बेनिफिट्स दैट आई ट्राई टू पेन डाउन जितना मुझे समझ में आया, करेक्ट, बिकॉज ये सारी रिसर्च लेवल पे है. RPA आई वुड नॉट से रिसर्च लेवल पे है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब रिसर्च लेवल पे है. ओनली फ्यू ऑफ दी big sharks or big companies are using blockchain technology, like अपना आधार हो गया या bitcoins हो गए. तो वैसे ही RPAs भी यूज हो रहे हैं to a greater extent, I would say, क्योंकि इसका नीड ना बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हाँ यार ये काम तो अगर एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, और अगर हमने किसी को कमांड दे रखा है तो दे कैन ऑल्सो. तो फॉर श्योर इसमें एरर रहने की गलती, जो एरर रहने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है. ओके, तो हम आगे चलते हैं. यूसेज ऑफ RPA इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, करेक्ट. जैसे मैंने बोला RPA तो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यूज में है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट दिस, बट दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स. तो अगर हम इंडस्ट्रीज देखें, फ्यू इंडस्ट्रीज आर हेल्थ केयर, HR, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, टेलीकॉम, गवर्नेंस. ठीक है, तो उसमें एक HR का अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर. जैसे अपन ने OMR शीट का एग्जांपल लिया, इनवॉइसेस का एग्जांपल लिया, तो अब एक इंडस्ट्री वाइज एग्जांपल लेके देखते हैं. वो तो अपना एक प्रोसेस एग्जांपल रह गया था. इंडस्ट्री में कैसा होगा, देखिए HR में ये कैसे काम कर सकता है. अब इतने सारे 1000 एम्प्लॉयज होते हैं या lakhs एम्प्लॉयज होते हैं किसी कंपनी में. तो अब एक एक का क्या बोलते हैं, एक्सेस देना, उसको डिलीट करना एज एंड व्हेन जो वो छोड़ के जाते हैं, ये सब ना बहुत ही टायरसम और बहुत ही इसमें एरर होने की बहुत चांसेस हैं, इफ आई वुड से. तो यहाँ RPA बहुत ही स्लीमलेसली काम करता है. जब आपने फील्ड ये डाल दी है कि भाई ये बंदा है, ये इस वक्त से इसने काम करना शुरू किया है, एंड व्हेन यू put the data कि अभी इसके बाद ये काम करना नहीं करेगा, तो immediately with no time, with a blink of your eye, वो उसके एक्सेसेस हटा देगा. ठीक है कि भाई this बंदा is no longer in the organization, or this people is no longer in the organization. तो ठीक है, इनको हटा दो, इनको एक्सेसेस की क्या जरूरत है. So this secures your organization. कल को अगर that banda is no longer, that person is no longer associated with your organization, so why should they should have the access? नहीं होने चाहिए ना. तो RPA यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है कि आपने उसमें फीड कर दिया कि so and so person, so and so employee is no longer with like with this effect. ऐसा कुछ लाइन नहीं डालते हैं, बट ठीक है, डेट है, उस डेट के बाद उसको कोई भी एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. ना ही उसको अंदर आने का एक्सेस मिलना चाहिए, ना ही कोई बैंक अकाउंट का एक्सेस मिलना चाहिए, ना ही कोई फाइनेंशियल्स देखने का एक्सेस मिलना चाहिए. ठीक है, सो इन सब पे ये बहुत अच्छे से काम करता है. नो डाउट पेरोल्स पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन पेरोल्स पे क्या होता है कि RPA के अलावा वी हैव सम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो कि कॉस्ट फ्रेंडली रहते हैं. RPA के लिए क्या है कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी रहता है, but to a greater extent people are using it, organizations are already implementing these things. तो पेरोल वगैरह के लिए भी हम बात करेंगे कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं. सो वी हैड टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, ठीक है, वी हैड टॉक अबाउट RPA. The next accounting technology or the tool I would say is online softwares available. By online software, what do I mean? The online softwares like QuickBooks Online, they have an inbuilt feature. अच्छा ठीक है, ये बैंक फीड के बारे में बात कर रहे हैं. उससे पहले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग रिमोटली, बट यू वांट टू हैव एन एक्सेस इनटू योर फाइनेंशियल्स. तो दीस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स विल अलाउ यू टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर.
आप कहीं पे भी हो, एक आईडी, जैसे अपन स्काइप नहीं देखते हैं, टीम्स नहीं देखते हैं, जैसे ईमेल नहीं देखते हैं, करेक्ट, उसमें आपने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला एंड यू आर गुड टू गो। सेम सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, जैसे क्विक बुक्स का इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आई डोंट नो सम ऑफ अस आर ऑलरेडी यूजिंग इट, तो उनको एक रिलेट लगेगा ये चीज कि हाँ क्विक बुक ऑनलाइन जिस करके जैसे कोई चीज है। इनका एक डेस्कटॉप वाला फीचर भी रहता है, तो डेस्कटॉप इज समथिंग कि आपका विद इन प्रीमाइसेस या विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने उसको सर्वर पे रख रखा है एंड विद इन प्रीमाइसेस पीपल कैन एक्सेस इट। बट विद द क्विक बुक ऑनलाइन फीचर एनीबॉडी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट राउंड द ग्लोब, कहीं पे भी सिर्फ एक यूजर आईडी और पासवर्ड से उसको एक्सेस कर सकता है एंड फाइनेंशियल्स आर देयर, आपके आंखों के सामने वो फाइनेंशियल्स दिखेंगे। आपको जो भी ट्रांजैक्शंस पास करने हैं या जो भी रन लगाना है वो आप उसमें इजीली कर सकते हो। तो मैंने इसमें यहाँ पे दो एक मेन फीचर्स लिए हैं, क्योंकि देखिए क्या है, बीइंग एन अकाउंटेंट हमको नाउ एंड देन ये बैंक रिकंसिलेशंस, बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, ये सब देखने पड़ते हैं, ठीक है। सम ऑफ अस मस्ट बी on this side of the table, some of us must be on that side, like on to the what do you call that side of the table, this side and that side, by this I mean कुछ तो अकाउंटेंट हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शन को, और कुछ हमारे जो फर्टर्निटी है will play a role as an auditor। तो उन दोनों के लिए ही ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू इज कि इसको अकाउंटिंग टूल में इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑडिटर को तो सिर्फ इतना मतलब है कि जो बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है वो सही था कि नहीं था, ठीक है, जिस बंदे को जाना चाहिए था या जो ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए था, या मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, वो इतना देखेगा और उसका काम खत्म। बट एक बीइंग एन अकाउंटेंट जब हमको कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है एंड दैट टू गिव मी अ मिनट, हाँ, तो हमें कोई अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है और उसका क्वांटम बहुत ज्यादा होता है तो एरर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स विल गिव यू एन ईज कि अब देखिए कैसे काम करता है वो उस बारे में हम बात करते हैं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इसके दो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, दैट इज बैंक फीड, दैट इज कॉल्ड एज बैंक फीड एंड डायरेक्ट डिपॉजिट्स। इन दोनों का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं। बैंक फीड्स मतलब कि आपका जो इंटरफेस है, लेट्स से यू आर यूजिंग क्विक बुक्स, जो आपका इंटरफेस है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बैंक। जो भी बैंक में चेक्स लगेंगे यानी डिपॉजिट होंगे या जो भी पेमेंट होगा उसका पूरा समरी आपको रियल टाइम बेसिस पे आपके इंटरफेस पे दिख सकता है। अभी क्या होता है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हमारे पास क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट आता है या कोई इंफॉर्मेशन आती है, मे बी 15 दिन में आती है या महीने भर में आती है, देन फिर हम उसको रिकॉर्ड करने बैठते हैं। गॉन आर द डेज, वो सब अब नहीं होता है, बिकॉज क्या है ना कि हमारा जो टाइम है अगर इन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में चला जाएगा तो फिर हम एनालाइज कब करेंगे, करेक्ट। तो अगर हमने एज अकाउंटेंट उसको एनालाइज कर लिया तो एक ऑडिटर का काम ना बहुत आसान हो जाता है, एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ दीज बुक्स आर मेंटेन्ड रियली वेल, इसमें कुछ ऐसा फ्रॉड जैसी चीज नहीं मिलेगी, या फ्रॉड तो चलो बड़ा वर्ड हो गया, बट कुछ भी ऐसा मिस स्टेटमेंट्स वगैरह या मटेरियल वीकनेस कुछ नहीं मिलेगी या सिग्निफिकेंट वीकनेस कुछ नहीं मिलेगी हमको। हाँ, तो बैंक फीड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो आपका इंटरफेस है, लेट्स से क्विक बुक ऑनलाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बैंक एंड एज एंड व्हेन बैंक के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती है वो जस्ट अ क्लिक अवे आपके इंटरफेस पे दिख जाती है। जैसे ही आप उसको अपडेट करेंगे ना इंटरफेस को, वैसे वो आपको दिखा देगा कि हाँ आज के दिन में, यानी लेट्स से वी आर स्टैंडिंग एट द लेटर डे, तो अभी मैंने अगर कुछ उस पे क्लिक किया तो हमें पूरा दिन भर का वो ट्रांजैक्शंस दे देगा, फर्स्ट। सेकंड थिंग इज कि वो उस ट्रांजैक्शन को जब आप देखेंगे तो उसको डायरेक्टली पोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एक इंटेलिजेंस भी रहता है कि भाई हाँ आपके हिस्टोरिकल डेटा को रीड करके वो आपको बताता है कि so and so expenses has gone to this head, तो वो वहां तक आपको
एक ईज मिल जाती है कि हाँ यार ये एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाना चाहिए, या सो एंड सो पार्टी को हमने पेमेंट किया है, वी यूजुअली बुक इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो वो वहां तक आपको हेल्प करता है कि भाई ये जीएल कोड है या ये जीएल हेड है, आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं योर एंट्रीज। सो एक ही दिन में, यानी द सेम डे यू हैव द ease to post that those transactions that are available in the बैंक स्टेटमेंट, जो कि मे बी आप मंथ के बाद में करेंगे या जब भी टाइम मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा हम करेंगे। सो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लाइक क्विकबुक्स ऑनलाइन, दे हैव एन इनबिल्ट फीचर ऑफ बैंक फीस दैट अलाउ यू टू ट्रैक एंड मैनेज योर रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस इन रियल टाइम। सी ये रियल टाइम वाला वर्ड है ना, ये बार बार पॉपुलेट हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आज कोई फ्रॉड हुआ या आज कोई मिस स्टेटमेंट हुआ तो हम उसको 10 दिन बाद देखेंगे और फिर उस पर एक्शन लेंगे। नो, दिस रियल टाइम वर्ड is big enough nowadays। तो हर चीज अगर उसी समय पे हो जाएगी तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, and this will going to happen, you know, I can assure that। Bank fees replace manual entry into accounting software, making reporting and reconciliation transactions more efficient। फिर वो reconciliation वाली बात ही नहीं रहती है, जैसे आप intercompany transactions भी करते होंगे कि उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग रहती है या जो भी अपने लॉस रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आप जब करते होंगे तो ये इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं इन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स में दैट विल यू नो हेल्प यू टू डू द सेम जॉब इन द रियल टाइम, करेक्ट। तो ये तो बात हुई अपनी बैंक फी की। अब जो सेकंड मैंने आपको बताया था फीचर, वो रहता है डायरेक्ट डिपॉजिट का। तो डायरेक्ट डिपॉजिट में कैसा रहता है कि नो डाउट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, उनका पेरोल भी रन होता है। तो अभी जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अगर अपन लेके चले तो भाई मंथ खत्म होता है, दूसरी या तीसरी तारीख को या 7 तारीख को हमारा चेक बनता है, देन वी गो टू द बैंक एंड देन उसको लगाते हैं एंड देन वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है। दिस इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैंने चेक काट के दिया तो फिर वो एम्प्लॉय की चेक या उसके बैंक में शायद 10 दिन बाद रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मीनवाइल आपके बैंक्स भी बीच में क्रॉस वेरीफाई कर रहे होते हो कि हाँ ये चेक सही से बना है कि नहीं बना है। ऑल दोज डिफिकल्टीज आर देयर, वी कांट डिनाई इट, राइट। तो इन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है आपकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन और उसकी पेरोल इन्फॉर्मेशन एज इन उसने कितने घंटे काम किया है, कोई ओवर टाइम तो नहीं है और उसको आर्ली बेसिस पे पे हो रहा है या मंथली बेसिस पे पे हो रहा है, तो वो हम इंफॉर्मेशन डालेंगे एंड विद अ क्लिक अवे, ठीक है, आज उसका पूरा रन हो गया, उसको पेबल आ गया, पेबल दिखा रहा है कि भाई हाँ उसका मंथ खत्म हो गया, उसका पेबल दिखा रहा है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके बैंक से पैसा कट के सीधे उसके बैंक में चला जाएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन आर ऑलरेडी देयर आर प्रीफिल्ड फील्ड्स जो कि ये अनेबल करती है कि भाई वो ट्रांसफर हो जाए, एंड प्लस विद द फीचर कि वो एंट्री भी पोस्ट कर सकता है आपके लिए। अगर आप उसको ऐसे डिजाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं कि भाई हमेशा मेरा पेरोल रन होगा तो ये फला फला टैक्सेस कट के ये एंट्रीज होगी, टैक्सेस भी काट के वो आपके अकाउंट में ही रख लेता है, बिकॉज यू आर लायबल टू पे द टैक्सेस, राइट। आपको ही जाके डिपॉजिट करवाना है तो आपने उसमें से डिडक्ट कर लिया और वो आपके पेबल में शो कर देता है। सो दीज आर सम ऑफ द यू नो अकाउंटिंग टूल्स या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी कह लीजिए जो कि आज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यूसेज में आ रहे हैं, एंड वी शुड यू नो हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए, वी शुड एनकरेज दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इससे क्या है कि ये नहीं हो रहा कि आपका कहीं भी रोल खत्म हो रहा है, बट इट विल गिव यू एंड यू नो इट विल गिव यू एबिलिटी टू ग्रो। आपका दिमाग फिर और कहीं चलेगा, यू नो स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस वाली जो चीज होती है ना, उसमें आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा रादर देन दिस क्लरिकल वर्क्स, आई वुड नॉट से क्लरिकल वर्क्स, बट ठीक है जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का वाला चीज होता है ना, ये जस्ट अ क्लिक अवे आपके पास अवेलेबल है तो फिर क्यों करना है, राइट। So with this we come to an end for the accounting tools. Now I would like to invite Mr. Harshwal, our guest speaker, to you know give his expert opinion on the auditing tools. जैसे हमने बोला था सेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक अकाउंटिंग टूल्स एंड ऑडिटिंग टूल्स। अकाउंटिंग का काम हो गया, नाउ व्हाट ऑडिट कम्स, हमारे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए, अब हमें ऑडिट करनी है। सो विदाउट फर्दर अडू सर, ओवर टू यू मिस्टर हर्षवाल।
Okay, can everyone hear me well? Yes, sir. Okay, so good morning to you all. और इस पे हम बाद में आएंगे why good morning. Kirti, can you take me to the slide which 29th? Okay, no, bring back to that one. हाँ, तो मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो हिंदी में शुरू करेंगे, हिंदी में खत्म करेंगे, जहाँ इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी वहाँ इंग्लिश बोलेंगे। वो जो डायनासोर के साथ में से ही प्रैक्टिस शुरू किया था, अभी तक कर रहे हैं और 101 साल करने का इरादा है। थोड़े बोर हो जाओ तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस पूरे सेशन के अंदर कुछ एक चीजें ऐसी काम की बोली जाएगी जो लाइफ लॉन्ग काम आएगी आपको। Definitely, as I have been given the technical thing, so I am going to speak technically too, but some of the aspects of my part will directly relate to your professional life. तो जैसे इसी पे है कि why technical approach in auditing. तो जब मैंने सीए करना शुरू किया था तो उस टाइम मेरे को किसी एक रिलेटिव ने पूछा था कि भाई सीए क्यों कर रहा है, तो मेरा आंसर था पैसे कमाने के लिए। फिर सीए बन गए, फिर बोले अभी मैं बोला मैं प्रैक्टिस करूंगा, बोला प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, मैंने बोला और पैसे कमाने के लिए, थोड़े ज्यादा कमाने के लिए। फिर एक 43 की एज में सीपीए करके यूएस चला गया, तो वहां भी हमारे बहुत सारे भाई बंद हैं। उन्होंने पूछा भाई वहां तेरा अच्छे खासा चल रहा था, तो यहाँ क्यों आ गया और क्यों सीपीए का, बोला और थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और अब वापस आ गए हैं पार्शियली 22 साल के बाद में, लेकिन अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं। अभी इसके लिए आए हैं कि थोड़ा सा मैंने पैसे कैसे कमाए, मेरा प्रोफेशन कैसे जिया और अभी कैसा जी रहा हूँ, उसको थोड़ा सा शेयर करें, ताकि हो सकता है कि ये काम आवे आप लोगों के लिए। Before I jump on the technology, you can call it as a scary information or something. टेक्नोलॉजी हम लोगों को यूज इसलिए करनी है कि हमको पैसे कमाने हैं। नंबर 1, पैसे कमाने हैं तो कल से ही टेक्नोलॉजी यूज करना चालू कर दो। जितना कर सकते हो उतना यूज करो, पैसे कमाओगे, टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ये गारंटी है आपको। दूसरी चीज है कि आपका सर्वाइवल जो है ना, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। अभी आप में से कई लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, और ब्रिटिशर्स आए थे बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करने के लिए ब्रिटिश ने लॉ पास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इंडिया में लॉ पास करवाना चाहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर देगी। वैसा ही हुआ। सो एक्चुअली इंडिया वाज रूल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एज बिजनेस। अभी देखो, आज यहाँ हमारे सीपीए की कोचिंग क्लासेस खुल गई है, सीपीए के एग्जाम होने शुरू हो गए हैं, गोरे लोग फिर आ रहे हैं। तो हमको अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए तैयार करने के लिए ऐसा है कि जितने लोग सीपीए कर सकते हो सीपीए करो। जितना टाइम आपको सीए करने में लगता है और जितना एफर्ट्स लगता है उसका 10% लगेगा सीपीए करने में। तो एक तो ये हो गया कि कम एफर्ट वाला हिसाब है, कर सकते हो। दूसरा, जितने पैसे आप सीए बन के कमा रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा कमाओगे। और टेक्नोलॉजी यूज करनी ही होगी, क्योंकि our survival as professionals is totally dependent on the use of the technology. अभी हम आते हैं इसमें जो एस्पेक्ट्स है इसके ऊपर। आप लोगों की विलिंगनेस होनी चाहिए टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। ये एक यहाँ बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि एक अगर दोस्त है तो बोलते हैं यार चलेगा, कुछ भी किया हो तो यार चलेगा बोल देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं।
थोड़ा सा एज वाला मिलेगा, मेरे जैसा कोई मिलेगा तो बोलेगा सर जी चलेगा ना, आगे बढ़ो ना। मैं बोल रहा हूँ आगे मत बढ़ो, इफ यू हैव टू डू द राइट थिंग जस्ट डू दैट, एट दैट पॉइंट जस्ट डू द राइट थिंग। ये जो चलेगा जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा हमारे प्रोफेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी में, अभी जैसे कीर्ति बोल रही थी कि ये ऑटोमेटिक ऑटोनमस, इसका सिंपल सा फंडा मेरे हिसाब से जो कीर्ति ने जो बोला वो कमेंडेबल था पूरा का पूरा। एक्चुअली वी आर इन सच ए सेशन, वी इवन कैन नॉट गिव हर applause or something, but she really did really a fabulous job. ऑटोमेटिक मीन्स आपका जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ना उसमें वो गया, वो आपका बहुत कम हो जाएगा, काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। जो ये जो आपका बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक है, कई सालों से यूज कर रहे हैं, 400-500 साल से यूज कर रहे हैं। अभी आपकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंदर जो इसका जो इन्वेजन आया है ना, ये मेजर आपका कोविड के बाद में आया है। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ उसके बाद में कंपनीज और द सीए फर्म्स और द सीपीए फर्म्स ऑल आर फोर्स्ड टू यूज द टेक्नोलॉजी। First of all, you have to provide the tools, force your people, or let's say companies forcing the CAs or CPAs or accountants to use better internet, better IT machines, and then better tools to monitor the progress. The tools are such that they monitor automatically the progress. So for example, आप काम करते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे अभी आगे आएगा हमारे आगे की स्लाइड में, लेकिन वो सब स्लाइड्स में साथ में भी बोलूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि कोई स्कोरिंग वाला कोई क्लास नहीं है ये। हाँ, सीखना है तो कैसे भी सीखा जा सकता है। कि जैसे आप एक कैशवेयर करके एक सॉफ्टवेयर है, वो रिपोजिटरी है, आप अकाउंटिंग में भी यूज कर सकते हो, ऑडिट में भी यूज कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर है कि आपकी इंफॉर्मेशन वहां रहती है, उसको आपने कोड्स दे दिए कि मेरे पर्टिकुलर वर्क पेपर का कोड ये है कि 11,400। अभी आप एक टाइम एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कि आपके काम करने वाले ने कितना काम किया, कौन से एरिया में कितना काम किया, वो आप सेम कोड आप उधर टाइम एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हो 11,400। अब देखो यहाँ एक बंदा काम कर रहा है 11,400 जो कोड वाला एक जो वर्क पेपर है, लेट्स से यू कैन कॉल इट एज अ रिस्क असेसमेंट इन द ऑडिटिंग, और फिर आप टाइम एंटर करने जाते हो तो अगेन यू पिक दैट कोड एंड यू राइट द 11,400। नाउ हाउ द ऑटोमेटिक थिंग वर्क्स, आई टेल यू, you can write a simple script, a bridge between these two softwares. So your time and billing software will pick the clock time on your auditing software where you were working. आपको टाइम एंटर करना नहीं है, आपके ऊपर और कोई मॉनिटरिंग टूल डालने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिशनर्स है, जो काम करने वाले हैं, सबके लिए बहुत अच्छे से काम आता है, प्रोवाइडेड वी आर विलिंग टू यूज इट। So that is the one area, the autonomous. Now in the work papers, particularly I will talk about the auditing because I have been doing auditing lately more, accounting less. Auditing simply once you are engaged, or let's say you are hired, और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब उसके बाद में आप लोग ऑडिट करने के लिए आप क्लाइंट को बोलते हो कि भाई हमको ये चीजें चाहिए आपके ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। आप क्या करते हो, उसके अंदर आपका एक प्लानिंग सेक्शन है और एक दूसरा, पहले हम लोग जिसको फील्ड वर्क बोलते थे, देयर इज नो मोर फील्ड वर्क बिकॉज यू डोंट गो इन द फील्ड। ये जो वर्क फ्रॉम होम हुआ हमारा 2-2.5 साल और अभी भी है, फील्ड वर्क होता ही नहीं है। आपको जो भी टेस्ट वर्क करने हैं, आपको सब जब डिलीवरेबल्स आपको मिलते हैं यहाँ और आप कंप्लीट करते हो, तो आपके जैसे 3 सेक्शन है जनरली। आपका एक प्लानिंग है, उसके बाद में आपका टेस्ट वर्क है और उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग है। तीनों इंटरकनेक्टेड है। अभी आप मैं बता रहा हूँ ये तीनों कंपोनेंट को आपकी फर्म के जितने लोग हैं वो तो शेयर कर ही रहे हैं,
अगर आप ये तीनों कंपोनेंट को आप अपने अपने क्लाइंट से शेयर करना शुरू कर दिया, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी लेवल नंबर 2। आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट इज नेवर गोइंग टू क्वेश्चन इट if the client is able to access your work papers, if the client is able to see your time and billing software in real time. जो disputes है that can be eliminated totally if you use this kind of the tools. और tools इतने सस्ते हैं कि अभी उसमें नहीं जाएंगे, शायद और कभी जाएंगे, क्योंकि दूसरी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और फिर उसके अंदर चले जाएंगे तो हमारा छूट जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। टूल्स इतने हैं कि आपको सस्ते सस्ते टूल्स मिलते हैं कि आप ऑटोमेट करते जाते हो, लेकिन एक ही चीज है कि आपका विलिंगनेस होना चाहिए कि ये चीजें मुझे क्यों यूज करनी है। और जब ऐसा इश्यू आवे ना कि ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज करें, तो काम क्यों कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए, इजीली ज्यादा पैसे कमाने हैं तो टेक्नोलॉजी यूज करो। अभी मैं 6 महीने और हूँ, इधर ही हूँ इंडिया में, अभी मेरा इंफॉर्मेशन ही है आप लोगों के पास में, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके, कभी भी कांटेक्ट कीजिए। 6 महीने तक कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके देखिए, अगर आपको फायदा नहीं होता है तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू इन दैट। अभी इस स्लाइड के ऊपर आप देखोगे तो जैसे अभी सेंट्रलाइज्ड एंड कोलैबोरेटिव ऑडिट प्रोजेक्ट्स, अब जैसे एक टूल है आगे आएगा जिसको एक शूरा लिंक बोलते हैं, कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। हाँ गया वो वापस, हाँ ये इस पे आपकी इंफॉर्मेशन, ये ऑनलाइन टूल है। आपको जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ रिक्वेस्ट पूरी की पूरी डाल दो, क्लाइंट को एक्सेस मिलेगी, क्लाइंट इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाएगा और आपके पास में आएगा। कलर कोडिंग यूज होती है, आपने उसको एक्सेप्ट किया तो क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाता है कि योर डॉक्यूमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड। इफ यू डोंट एक्सेप्ट यू कैन जस्ट से नो, आपको एक तो क्लिक ही तो करना है, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन चली जाएगी। आपको अगर कुछ डालना है, इट इज ए टू वे टूल। अभी मुझे नहीं पता है यहाँ हम हमारे सीए प्रोफेशन में इस तरह के कौन से टूल यूज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं हम लोग भी, हम उनसे कोई वर्ड में, हमारा प्रोफेशन पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एट ऑल बिहाइंड और समथिंग। मैं सीए भी हूँ, सीपीए भी हूँ, और मुझे जितने एक्सपीरियंस यहाँ भी प्रैक्टिस करने का है 15-16 साल का, मुझे जितने ब्रिलियंट हमारे जो सीएज लगे उतना मेरे को दूसरे कोई भी प्रोफेशन में नहीं मिल रहे हैं। तो टूल्स हम भी यूज करते होंगे। इसके अंदर आपको टू वे, आपका जितना भी इंफॉर्मेशन जो आएगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, और अगर अगले साल फिर है तो आपको सीधा रोल फॉरवर्ड करना है। आपकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी तो पड़ी है, परमानेंट फाइल के डॉक्यूमेंटेशन पड़े हैं। कंट्रोल इस तरह का है कि आप अगर जैसे क्लाइंट के इधर 100 लोग काम कर रहे हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, you can give access to 100 people, they will keep dropping the information from their end। हमारे इधर अगर जैसे 6-7 ऑडिटर एक फाइल पे लगे हुए हैं, उन सबको एक्सेस है, वो देख रहे हैं। अंदर टेक्सटिंग का भी बेनिफिट है कि अगर आप कोई चीज नहीं समझ में आए, आपको फोन कॉल करने की जरूरत नहीं, आप वहीं टेक्स्ट करो, आपको आंसर मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा है, ये है। अगेन द कीवर्ड इज द रियल टाइम। अभी दूसरा वाला जो है, हमने कैशवेयर का थोड़ा सा बात किया, और अभी वापस जाते हैं कीर्ति उसी स्लाइड पे जहाँ था मैं, पीछे वाली। हम लोग थोड़ा सा जिगजैग ही करेंगे। हाँ इसके आगे जाइए अभी, मतलब फॉरवर्ड। नो आई थिंक वी आर गोइंग, या जस्ट स्टे ऑन दैट, नो स्टे ऑन दैट साइड, दैट्स आल्सो रियली गुड वन। वन मोर, यस हियर। ये इस ग्राफ के अंदर आपको जो जो चीजें दिख रही है, वो चीजें आपकी सब ऑटोमेटिकली की जा सकती है। अभी दूसरी एक चीज और आपको मैं बताता हूं कि सीपीए और यूएस गैप इज नॉट एट ऑल ए मिस्ट्री टू द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कि हर 4th चार्टर्ड अकाउंटेंट इज समहाउ इन्वॉल्वड इन द यूएस गैप।
और हमारा जो इंडियन गैप है और यूएस गैप है, इसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज आ गई। कुछ एक चीजें हैं जो लिस्टेड कंपनीज और जो लॉबिंग जो रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पास में, वो नहीं करने दे रहे, अदरवाइज इट इज द सेम थिंग। हमारे इधर भी पॉपुलेशन है, सैंपलिंग हम भी करते हैं, सब्सटेंटिव टेस्टिंग हम भी करते हैं, कंट्रोल्स हम भी यहाँ भी टेस्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है मुझे बताइए? हाँ, सब्सटेंटिव टेस्टिंग और कंट्रोल्स टेस्टिंग के अंदर इनमें फर्क है, लेकिन वर्ल्ड ओवर कैसे की जाती है और हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, इट इज सेम, वन एंड सेम, कोई फर्क नहीं है। और इधर कुछ एक एरिया के अंदर मैंने नोटिस किया है कि वी आर लीडिंग देम। In some of the areas, we are providing leadership to the accounting profession world over. एक नीचे एक है रिस्क एनालिसिस कैलकुलेशन। आपकी सबकी सब ऑडिट रिस्क बेस्ड होती है। We need to have mastery over this particular रिस्क असेसमेंट बोलो, रिस्क एनालिसिस बोल दो। वो अगर जितना अगर हमारा पावरफुल होगा, उतनी ही पावरफुल हमारी ऑडिट होगी, हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे ऑडिट में। टूल्स, हर चीज के लिए टूल्स अवेलेबल है आपके। इसके लिए जो अभी जैसे पॉपुलेशन टेस्टिंग है, पॉपुलेशन आजकल एक्सेल में वो आपकी डाउनलोड होगी पॉपुलेशन, उसके बाद में यू कैन प्ले विद दैट यूजिंग एक्सेल। अदरवाइज देयर इज अ टूल नाउ कीर्ति, यू कैन गो टू द आइडिया। Idea was really started by Keshweb, the same company, for fraud examination to begin with. पहले ये टूल ये बोल के बेचा जाता था कि अगर कोई फ्रॉड एग्जामिनेशन का एंगेजमेंट आपको मिला है तो आप ये टूल यूज करो, आपको पता 54 डिफरेंट टेस्ट है इसके अंदर। आपने अपना डाटा डाउनलोड किया, यू कैन रन दोज 54 टेस्ट, और आपको फ्रॉड के बारे में कि भाई कहीं फ्रॉड है क्या, एनोमलीज है क्या, कोई चेक संडे को तो नहीं काटे जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डुप्लीकेट चेक्स तो नहीं है, डुप्लीकेट एड्रेसेस तो नहीं है वेंडर्स के, वैसा वाला काम था। अभी इसका ये इम्प्रूव हो गया है कि आपके अपने ऑडिट के अंदर क्लोज टू 50% ऑफ द ऑडिट फंक्शंस यू कैन डू बाय यूजिंग आइडिया। आप सैम्पलिंग कर सकते हो, जितने अच्छे तरह से सैम्पलिंग करनी हो उतने से कर सकते हो। दूसरा एनालिटिक्स है, डिफरेंट वेज में आप एनालिटिक्स कर सकते हो। आपका अगर प्रीलिम कर सकते हो, फाइनल कर सकते हो, स्टेप अप एनालिटिक्स है वो भी की जा सकती है। आपका डाटा इंपोर्ट कौन से भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 to 30 डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स दे सपोर्ट इट। यू कैन इंपोर्ट द डाटा and analyze it. And I would definitely recommend here also to the CS, not exactly the idea, or because we are not really promoting anything here. So I want to clear that very well, that we are not at all promoting anything. I am back here for some time, then I will go back to US, come back again, those kind of things. But the goal now is not at all there to make more money or something. No, I'm kind of done making money. लेकिन कुछ ना कुछ टूल यूज कीजिए। इवन आप एक्सेल को यूज कर सकते हो। आपकी एक्सेल के अंदर क्लोज टू 25% ऑडिट आपके एक्सेल से की जा सकती है, उसमें भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। Now this another is a Tableau. How we are doing time wise? I think we have maybe 10 more minutes, then we will open the floor for questions and answers. Tableau, this is another software. I can tell you that the biggest or the largest user of Tableau is Deloitte, a favorite CPA firm or accounting firm of the professionals or the accounting professionals. They use it like anything. The use of this one is, particularly it is a data visualization software. And it is not the data seeing software or something. Visualization is something that you can really
if you can visualize something in the different ways, it's kind of little bit imagination is also used. But this analyzes the data and then it puts together the data in such a way कि आपको जिस तरह से डाटा देखना हो आप उस तरह से देख सकते हो. 50 close to 60 or 70 different ways you can see the data. CPA firms have also started using and is not that expensive. The tools we are talking about वो सब अपने expensive नहीं है, affordable है. Even इसके भी licensing के जो है वो different way. अगर आप एक भी license लेना चाहो एक भी ले सकते हो, एक भी दे रहे, ऐसा नहीं है you have to buy the multiple licenses or something. Next one, Kitty. Yes, it's about the Tableau. It prepares the data in the sense that we have to do in every tool we are using, because the client is not going to give you the information in some proper way, the way you want. तो आपको डेटा तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. इस टेबलो में ऐसा है कि छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स है, उससे आपको डेटा को इस तरह से जहाँ मूव करना उस तरह से मूव कर लो, जिस तरह से फॉर्मेट करना हो फॉर्मेट कर लो. दैट्स द प्रिपरेशन ऑफ डाटा. एनालिसिस पार्ट आई डोंट थिंक द ह्यूमन बीइंग really does anything in that. वो analysis part is done by the software. And फिर आपका जो आगे जो है इसका जो visualization part है उसमें आपको options है. कमांड से आप जिस तरह की कमांड दोगे उस तरह से हो जाएगा. और आप इसका वो डेमो डेफिनेटली फ्री है. डेमो they give maybe for 30 or 40 days or something to try it. ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक आधे घंटे के अंदर आप समझ जाओ कि ये क्या. ये थोड़े और डिफरेंट टूल्स हैं जो आपके ऑटोमेट लिस्ट आउट किया है हमने कि ये भी टूल्स है जो यूज किए जाते हैं. पावर BI इज यूज्ड लाइक एनीथिंग. SAP is just for the larger manufacturing companies and distribution, and these days the supply chain companies also. MindBridge is really getting very popular. It is little bit different than the idea and all those things, but it's getting popular. A lot of people are using it. This one also. Next one. No new math. I think that's for you, Kirti. Yes. So with this, we come to an end for this session, like before having the queries. So why I'm saying this is a no new math, because these concepts are not new. As I've mentioned in the, in the first few minutes of my session, that we are going to talk about the technologies which are already there, या तो development phase में है, या फिर moderately use हो रही है, या फिर to a greater extent they are using. ठीक है. तो with this, I want to say that automating business processes are not new concepts. What is new are the many ways that innovative automation technologies are being used. जैसा अभी guest speaker Mr. हर्षवाल ने भी बोला कि ये tools जो हैं वो कौन से तरीके से आप use कर सकते हैं. In how many ways you can think that you can use it in our organization, या फिर आप जहाँ पे भी practice करते हैं या आपका client है उसमें आप इसको कैसे apply कर सकते हैं. That is what we had talked about. So there is, कोई एक ऐसा कुछ rocket science जैसा we have not discussed. Maybe अभी आपको थोड़ा relatable नहीं लगे, though we have tried to make it relatable, making the, giving you the day-to-day examples, और जो भी आपको relatable example लगे वो देके हमने उसको थोड़ा understandable बनाने की कोशिश की है. But इसमें कुछ भी नया नहीं है. That is what we are trying to conclude here, and the kind of real world benefits being achieved by the organizations worldwide. Because obviously अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिससे आपका टाइम बच रहा है, आपका कॉस्ट बच रहा है, आपका काम करने का तरीका बेटर हो रहा है, you are becoming more and more efficient, तो worldwide you will have the recognition for sure. ठीक है. So applying automation to simplify routine or mundane tasks free up us workforce to do more strategic, higher value work, such as bringing new products. As I told you, कि हमारा जो एक प्रोफेशन को देखने का तरीका है, that shifts
जो जो एक इकोनॉमिक शिफ्ट है वो हमको देता है, मोर इनटू एनालाइजिंग और डेटा एनालिटिक्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो एक लेके आता है। बिकॉज जो आपकी यूजुअल टास्क है वो तो आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर देगा। नाउ यू हैव द जॉब टू एनालाइज इट, कि उसको और कैसे बेटर बना सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। एंड businesses are realizing the benefits of automation for sure, ठीक है। तो ये हम यहाँ we have come to the end of this session, and ultimately not implementing automation technology would definitely have a higher cost. एक costly mistake होगी if आज भी अगर हम इसको implement नहीं करते हैं तो। So now we are open for the queries if anybody has. We have taken 15 minutes time, so we have wind up 5 minutes earlier, I guess. But ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि आप आराम से इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। So we thought like that. So yes. Any questions if anybody has? Okay, meantime, you guys think of the questions. I really like to thank and appreciate what the CIRC is doing. All these young guns are really doing so well. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग. Really हमारे प्रोफेशन में आप जैसे लोगों की लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और एक फंक्शन भी अटेंड किया मैंने, और अभी भी मैं आज देख रहा हूँ आपकी जो एक्टिविटी लेवल है और आपका जो डेडिकेशन है प्रोफेशन के लिए, वो रियली कमेंडेबल है. थैंक यू. Thank you so much, sir, for your experience, for your knowledge about the tools. How should we use the tools and why we need in the current scenario of auditing and accounting. Yeah, thanks for to Kirti also. You have provided a great knowledge about the ERP, blockchain, which is very new for us, many of us, about the robotic process. जैसे आपने Omar Sheets and cab services का example दिया, वो बहुत impactful है, easy to understand for the topics, and the Suralink idea. Yeah, we should use these tools to be updated in the current scenario. Yeah, we are open for the queries. Anyone want to ask anything, they can raise hand or type their questions in the chat box. I guess the topic is not quite relatable. तभी queries नहीं है. Okay, so should we wind up or how is it? So that let CIR Yeah. solution about it. Atul sir, if you are. Okay, sir, so we have a query here from Neha Garg.
So she's saying, as of now, I could not find any suitable audit software for a small CA firm for conducting audit of the clients. Can you kindly suggest name of any software that can help in auditing process and not only in reporting process? So I guess this is for you, sir. Audit tools ke liye she's asking. Yeah, so again, we don't want to name any auditing tools here Yes. specifically. So what Neha can do is that Neha can reach us out personally, and we will definitely let her know, and we can help there. Yes, based on your requirement, Neha, you can definitely search for a software available, because as I told you, these are the technologies and softwares, some of the few of the, this is the tip of the iceberg. Thousands of softwares are available. So you can just, research according to your, quantum, you can say. If you're saying that you are working in with a small CA firm, then definitely based on the clients that you have, right? What sort of quantum they have, what are the type of industry that they have. So you can definitely reach out to any ERP developer and, place your requirement there. They will definitely come up with a nice software which can satisfy all your requirements as of now. But Ashish, do we have anything like PPC here in India or no? I don't think so, sir. We are using anything like this. No, for the research part, if let's say somebody wants to have the latest work paper based on the standards or something, then they, what do? They just get the, I mean, what is the source of the work papers? So we mostly use Google or any previous working paper or No, something but like that. but no, in US we have the PPC and then we have the CCH, and there are 4 different vendors. They have the repository of the latest work papers. But here in India, I don't have any idea that how the work papers are really updated. So I maybe, guess we should sum up this session then. but we can sum up, but I think the CRC people should be there, right? So Ashish sir, you can give the vote of thanks. Yeah, thank you so much, sir, and Kirti for the session, for all the topics you have spoken up. It's a very grateful to us, all of us, and the CIRC itself for the conducting these VCMs, which is very helpful to all the members. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Should I end the session? So should I end the session? Yes, I guess, because we have kept the time for the queries, but I guess people don't have the queries as such. So we should wind up this. Okay, thank you. Thank you, everyone.